Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, Kasakai, Kedo Halai, Ken Show. Once again, I am Abhas Jadhav, welcoming you all to your favorite talk show, Spotlight with Abha. Today, we have an astounding personality with us who is very kind, who is very soft and beautiful by heart and voice, but a lady of principles. She is renowned nutritionist and dietitian from Surat, Miss Neerja Parekh. Welcome, Neerja ma'am, to my show Spotlight with Abha. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot for this wonderful introduction. Thank you. Okay, so before I give my questions to Miss Neerja ma'am, I want to give a brief introduction what she is currently doing. Miss Neerja is currently on panel dietitian for Saurabh Maternity Hospital and Webavi's Fitness Studio in Surat. She is also attached with the Chairo Charitable Trust and Diagnostic Center as on panel dietitian visiting faculty. So now let us move towards Miss Neerja. Ma'am, how did you become a nutrition and dietitian? This is a tough field to do a lot of research about food and diet and every details of each and every food stuff we consume. So how did you Hmm. opted for this? Well, actually, ma'am, my parents both are doctors. So Oh, since my birth, I have been seeing the medical environment in the family. At the same time, my dream as a child was to become a doctor. But anyways, unfortunately, I couldn't score that good marks that I could get admission in medical college in 12th grade. And then I had two options in front of me, whether to go for homeopathy or Ayurvedic or to the new field, which was the very second batch in Surat, like nutrition batch. I selected nutrition, and then I entered the college. That was something new for me. Uh, I really started liking the subject. I started liking because typically we are surtis, so we are foodie people. So food is always in the mind, at the back of the mind. It's always, even if I put my mother and my father in front of me, they are doctors, but still the food is there inside their mind. बेटा बाहर से आएंगे, बेटा क्या खा के आए, क्या खाओगे, so that is there in their mind. तो ये हमेशा रहता है कि नहीं, अब खाना इतना हमारे लोगों के ब्लड के अंदर है, तो क्यों ना उसके ऊपर स्टडीज किए जाए कि कितना क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या नहीं अच्छा है. And I really started liking it. And then I would like to tell you my experience, ma'am, ki after I graduated, I started practicing as a dietitian. There was nobody who was knowing the importance of dietitians, not even doctors in those days. I used to go to meet doctors के please you refer the patients. They said क्या जरूरत है, हम लोग खुद ही बोल देते पेशेंट को तीखा मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, डायटिशियन की क्या जरूरत है. Those were the days when being a dietitian मेरे लिए establishment was a big issue कि कैसे establish करें. Fortunately my parents supported me very nicely those days. And अच्छे से धीरे 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 रेपो बनता गया पेशेंट्स के साथ. एंड देन फेस टू फेस, माउथ टू माउथ बातें होती गई. एंड आई anyhow established, I started working with gyms where actually weight reduction was the goal. Their dietitians were playing a vital role. So I started working with gymnasiums, then I started working with health clinics and all. I started working with different hospitals. So today, like this year is the 25th year of my work, and I have got 25 years experience where I worked with different hospitals. And maybe that is the thing why I know all the doctors, all the fitness industries experts, and everybody in this field. And I'm very happy with my journey. Slowly nowadays dietitians are playing a big role. They are very much vital for all the fields, in all the fields. I feel कि हमने तो बहुत काम कर लिया इस फील्ड में, ऐसा लगता है. And these young girls are really talented. जो आती है मेरे पास, they come for internship
mentorship to me. I really feel they know so much. इतना हमारे टाइम में नहीं था सीखने को, but I still learn. I still do online courses, and I really participate in quizzes and webinars and all, just to gather more and more knowledge every day. So that's what my journey is all about. Great. And you had a wonderful journey, ma'am. And I know you are a very hard-working lady and lady of principle. So I know that you have left no, you have spared no pain in achieving your dreams and goals. Moving further, I just want to know that as now you are a nutritionist and dietitian. So during this lockdown period, as all of us were stuck into houses, right? So how did you, guided people to maintain their proper diet, balanced diet? Because next, the most important question was with students, children, who were totally, locked into house. They were not getting chance to play. They were not getting chance to move around. So how did you guided them? Ma'am, this is a very important question. Actually, you will laugh at my answer, but during this lockdown, my biggest clientele was pregnant female and obese children. You know, so parents were so much afraid कि बच्चे रोज कुछ ना कुछ नई वैरायटी बनाते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं, and they were very much excited to upload that on different media. तो इसी बहाने they learned also very nice things, but at the same time they ate also very much. तो weight gain भी बहुत कर लिया, and at the same time, yes, parents were of course worried. They were contacting me, and this is like it's a virtue कि video calling facility develop इतनी अच्छी हो गई है. So they used to call me, they used to video chat with me, and then I used to plan diet for them. I used to advise them what to do, what not to do, and that was also a good experience. And the second thing is like dietetics is a field where if you don't meet personally, then also you can talk to your patients and you can do your work that way. So fortunately, I worked that way. I suggested kids, beta ये खाना दिखता अच्छा है, पर जो चीज दिखती अच्छी वो हमेशा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं भी होती है. So even I suggested कि अच्छा ये चीज खानी है तो पहले ये हेल्दी चीज खा के फिर ये खाओ, तो वो आपको नुकसान कम करेगी. I used to give them options and they used to love it. So it happened that way. Great. So basically, what do you think the reason for obesity nowadays? You can easily see that now even children at small age they are becoming obese, and it becomes very difficult for parents to control their diet habits. Hmm. So how did Ma'am, you there are guide them? Yeah. there are many reasons responsible for that. First is the environmental effect. जो कंपैरिजन चल रहा है, इसने चीज केक खाया मैं भी चीज केक खाऊंगी, इसने पेप्सी पिया मैं भी पेप्सी पीऊंगा, दैट काइंड ऑफ कंपैरिजन, पीयर इन्फ्लुएंस बोलते हैं, वो शायद चीज बहुत बड़ी है. एट द सेम टाइम पेरेंट्स का थोड़ा सा लेजीनेस कह सकते हैं कि आज यहाँ से स्विगी कर लेते हैं, आज जोमेटो कर लेते हैं, बाहर से मंगवा लेते हैं, घर पे नहीं बनाना है. तो इन सब चीजों में बच्चे घर का खाना नहीं अच्छा है ये सीख गए, कि उनको ये लगता है कि नहीं बाहर का खाना इज अ फीस्ट, तो बाहर का खाना ही अच्छा है. सो ये एक हमारी माइंडसेट जो है पहले से हमारा, आपके एरा में मेरे एरा में हमने बचपन से देखा था अच्छा खाना मतलब मिठाइयाँ और फरसान बनना घर में, ठीक है, नमकीन बनना. अभी अच्छा खाना मीन्स रेस्टोरेंट का खाना, ठीक है. तो एक पूरा डेफिनेशन बदल चुका है. तो यहाँ पे बाहर का खाना खाते खाते भी ओबेसिटी बहुत बढ़ गई. सेकेंड थिंग, बहुत ज्यादा बैठना, ये जो वीडियो गेम्स है, मोबाइल पे कांस्टेंट रहना, लैपटॉप पे रहना, स्टडीज जो है कांस्टेंट ऑनलाइन हो रही है, तो इसके साथ साथ फूड इंटेक भी बढ़ रहा है. उनको पता ही नहीं चल रहा है. दिस इज सबकॉन्शियस ईटिंग, या हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सोचते नहीं है हम, बिल्कुल थॉटलेस ईटिंग हो रही है. हम क्या खा रहे पता नहीं, हमारा पेट कब भर गया पता नहीं है, हमें कब स्टॉप करना है, कोई बाउंड्रीज नहीं रहती है हमारे पास. फूड चॉइस, रॉन्ग फूड चॉइस जो है
वही अच्छी लगती है हमें। तो ये सारे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से एक तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स बहुत बढ़ गए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत बढ़ गए हैं, जहाँ पे बच्चों को छोटी छोटी एज में डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो रहे हैं। ऐसे काफी पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली। एंड सेकेंड थिंग इज पीसीओडी। पीसीओडी अप्रोक्सीमेटली 10 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को तो निकलता ही निकलता है जो कि ओबेस हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह पीसीओडी है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जहाँ पे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। एंड दैट इज मे बी ड्यू टू एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फैट, चीज है, बटर है, मैदा है, बेकरी आइटम्स जो है उसका एक्सेसिव कंजम्पशन हो रहा है। उस वजह से ओवरीज जो है वो सारे इफेक्ट हो रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं पीसीओडी की वजह से। तो ये सब चीजें बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है रॉन्ग फूड हैबिट्स एंड रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग पीयर इन्फ्लुएंस। ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही है और पता नहीं कहाँ जाके ठहरेगी। So we can say that these wrong food habit practices basically can be a reason of females getting pregnant late or non-fertility of their ovary in future. डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द रीजंस। ये जो पीसीओडी है इससे इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जो है पीसीओडी बचपन से द डे गर्ल स्टार्ट्स गेटिंग मेनार्की, उसका पीरियड आना शुरू होता है, तब से फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल जो है पूरा चेंज होना चाहिए। अगर नहीं होता है, गलत लाइफस्टाइल बच्चा फॉलो करता ही रहता है, तो आगे चल के ये सारे प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। Suggest some tips to my viewers that how they should be maintaining a healthy diet so that they cannot get obese, or they can at least control obesity. राइट मैम, आई वुड से कि डाइट जो है वो दिमाग से शुरू होता है, पेट पे बाद में आता है। पहले ये सोचना है कि व्हाट इज राइट, क्या मैं जो खा रही हूँ वो सही है मेरे लिए। एक बार खाने से पहले ये सोचना बहुत जरूरी होता है। और अब क्या सही है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज समथिंग विच इज एक्सेस इज रॉन्ग। मुझे इच्छा है, मेरा पेट अगर एक रोटी से भर रहा है पर मेरी आदत तो 2 रोटी खाने की है, तो मैं तो 2 ही खाऊंगी, तो वो एक एक्सेस, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, मैं तो सालों से 2 रोटी ही खाती हूँ, तो दैट इज समथिंग रॉन्ग। डिजाइन कभी भी चेंज हो सकता है, सालों का बना हुआ पैटर्न कभी भी चेंज, आपकी जरूरतें कम हो सकती है धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टॉप कहाँ करना है इसके लिए तो कहते हैं कि कॉन्शियस ईटिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि हमारी जो खाते वक्त हमारी सारी इंद्रिय जो है वो खाने के साथ होनी चाहिए। व्हेन वी ईट वी शुड सी एग्जैक्टली व्हाट वी आर ईटिंग। व्हेन वी ईट वी शुड हैव अ स्मेल ऑफ इट। हमें अभी भी कोई टिपिकल चीज का खाने का खुशबू आती है एंड वी थिंक अबाउट अवर मदर, वी थिंक अबाउट अवर नानी कि ये तो मेरी माँ बनाया करती थी ऐसी चीज। तो ये एक स्मेल खाने का लेना बहुत जरूरी है। द फील, द टेक्सचर ऑफ फूड, टू फील द फूड एंड हैव इट, इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। इस तरह से हमारा पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो खाते वक्त खाने के अंदर रहना बहुत जरूरी है। जो आजकल के बच्चों की, ये जो अगला क्वेश्चन था उसके साथ ही इसका रिलेशन भी है कि बच्चों की ओबेसिटी बढ़ने की और सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बढ़ने की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम लोग जो है कॉन्शियस ईटिंग नहीं करते हैं। हमारी जो इंद्रिय है वो खाने में है ही नहीं, टीवी देख कुछ और रहे हैं, खा कुछ और रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजंस। तो ये एक सेकंड टिप हुआ कि खाते वक्त हमारा पूरा ध्यान खाने में होना चाहिए। राइट, सेकंड थिंग, लाइक व्हाट वी ईट, जब भी मेन मील्स खाएं उससे पहले थोड़ा सा सैलड या सूप या फ्रूट लेना चाहिए। थोड़ा फाइबर रिच, थोड़ा विटामिन रिच फूड लेंगे पहले, हाफ ऑफ द स्टमक विल बी फिल्ड विद दैट हेल्दी फूड। उसके बाद फिर हम लोग अपना बेसिक मील खाएंगे, या फिर आप जो भी खाना चाहते हैं। कभी फीस्ट भी हो गया, द सेम थिंग आई वाज टेलिंग यू कि बच्चों को भी अगर आदत डालनी है अच्छे खाने की, या उनको ये बोलना कि नहीं बेटा आपको अगर कुछ फैंसी खाना खाना है या विच इज हाई इन कैलोरीज, तो उससे पहले आप थोड़ा सा फ्रूट खा लो या थोड़ा सा सैलड खा लो या एक बोल सूप पी लो, फिर वो खाना खाओ, तो ऑटोमेटिकली उसका कंजम्पशन घट जाएगा और हेल्दी चीज पेट में पहले चली जाएगी। सो वी हैव टू डील द इशू विद द साइकोलॉजी। यस, थर्ड थिंग इज लेट नाइट डिनर्स, जो सबसे बड़ी वजह है for obesity also and for all different medical issues,
कि डिनर जो है रात को हम लोग बहुत ज्यादा लेट खाते हैं, शादी ब्याह भी, हमारे फंक्शंस भी रात को लेट हुआ करते हैं, पार्टीज जो होती है रात को लेट होती थी पहले। तो द थिंग इज दैट कि यहाँ पे हमारा बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए तैयार हो जाता है रात को 10 बजे के करीब, 9:30 के करीब। उससे पहले अराउंड सनसेट के करीब हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनना धीरे धीरे स्लो हो जाता है बॉडी में। तो अगर हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनना स्लो हो जाए उसके बाद खाना खाएंगे तो ऑफ कोर्स जो भी बॉडी में है खाया हुआ है उसके टॉक्सिन्स में कन्वर्जन बढ़ जाएगी और उसका जो न्यूट्रिशन में एब्सॉर्प्शन है वो घट जाएगा। तो हम जो खाएंगे उसका फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा उसका नुकसान हो रहा है, उसका फैट कन्वर्जन बढ़ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा ओबेसिटी बढ़ती है और बॉडी अंदर से पूरा प्योरीफाई नहीं हो पाता। बॉडी को प्योरीफाई होने के लिए 12 से 14 घंटे चाहिए। अगर हम लेट नाइट खाते रहेंगे तो वो जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस है उसके लिए टाइम कम मिलेगा बॉडी को, और उस वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होके सारी बीमारियां बढ़ती जाएगी, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे किडनी प्रॉब्लम्स हो या लिवर प्रॉब्लम, क्योंकि अंदर से जो बॉडी की सफाई होनी है वो सफाई के लिए हम पूरा टाइम बॉडी को नहीं दे रहे हैं। तो दिस इज अगेन अ थिंग कि रात का खाना जो है जल्दी खा ले। जल्दी खाने का दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि बहुत ज्यादा भूख लगने से पहले ही खा ले, तो एज आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो ओबेसिटी बढ़ने के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, जितनी लेट होगी उतनी भूख ज्यादा लगेगी, उतनी भूख ज्यादा लगेगी तो हम अपनी लिमिट से ज्यादा खा लेंगे। लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो ओवर कैलोरीज को हम डंप करेंगे जो कि फैट बन के बॉडी में जमा हो जाएगी। राइट, सो दीज आर दी इंटरकनेक्टेड रीजंस कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा जल्दी खाना खा लेना है और जल्दी से सो जाना है। पूरी नींद मिलना भी बॉडी के लिए, इंटरनल प्योरिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। अराउंड 7 to 8 आवर्स डीप साउंड स्लीप अगर हम लेते हैं तो बालों से लेके पैर के नाखून तक के पूरे जो हमारे बॉडी के सेल्स है वो अंदर से प्योरीफाई होते हैं। ठीक है, अगर हम पूरी नींद नहीं लेते, अभी ये बच्चे देखिए पूरी रात जागेंगे, पूरी रात, अभी तो लॉकडाउन है, स्कूल है नहीं, तो गेम्स खेलेंगे या फिर आप ये कह लीजिए कि स्टडीज भी करेंगे, प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो पूरी रात बैठ के सबमिट करेंगे, वो काम करेंगे। तो इस वजह से बॉडी को जो प्योरिफिकेशन होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इन दैट केस ऑल्सो बीमारी, आपका रेजिस्टेंस भी इससे इफेक्ट होगा, आपकी इम्यूनिटी है वो भी डाउन होगी इससे। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी ऑल हैव टू कीप इन माइंड कि सही खाना, सही टाइम पे खाना, रात को जल्दी से सो जाना, पूरी नींद लेना और प्रॉपर फूड जो हेल्दी है वो पहले खा लेना। फिर चाहे सी अनहेल्दी, मेरे लिए बहुत इजी है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, एज ए डायटिशियन सलाह देना, पर बीइंग ए नॉर्मल पर्सन, अगर मैं एक आम इंसान की तरह सोचूं, ये डायटिशियन तो बोला करते हैं, हमें पता है ना हमें क्या अच्छा लगता है, राइट। सो वी हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो, वी हैव टू कंसिडर देयर फीलिंग्स ऑल्सो कि नहीं, अगर आप खाना ही चाहते हो जो आपके लिए सही नहीं है तो पहले जो सही है वो खा लीजिए, आधा पौना पेट उससे भर लीजिए, देन यू ईट समथिंग दैट यू लाइक, सो दैट ऐसी चीज जो कि गलत है उससे आपकी टंग विल बी सेटिस्फाइड बट योर स्टमक विल बी फिल्ड विद समथिंग हेल्दी। तो ये चीज है। Here, I just want to tell that nowadays, as I see in our city, Surat, that most of the people they have become health conscious. I can see them going on walk, going on jogging and doing cycling. They are going to gym, but I Hmm. don't see Surtis controlling on food. So that is again a big challenge, especially for Surtis. I know whether those who are living in the other parts of the country, they might be agreeing with us, but the Surtis, they will never compromise on food. That you will also agree with me. Yeah, definitely मैम, बट फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जिस तरह से मेरे क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, मैं कह सकती हूँ कि लोग हेल्थ कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस हो तो रहे हैं। ऑफ कोर्स कितना फॉलो करते हैं घर जाके मैं नहीं जानती, बट दे डू कम टू मी टू टेक करेक्ट गाइडेंस के क्या हेल्दी है हमारे लिए। इवन kids, they are so conscious, they come on their own without their parents, they come on a bicycle for diet plan कि मैम हमें अच्छे से क्या खाना है वो हमें बताइए। तो इतनी कॉन्शियसनेस बढ़ी तो है पहले से। ऑफ कोर्स जो टिपिकल सूती है मैम, आपको शायद पता नहीं होगा, लोग वॉक पे तो जाते थे पर वॉक से आते आते बीच में डेयरी होती है, वहां पे मलाई बैठ के खाते थे और घर आते आते फाफड़ा लेके आते थे, फाफड़ा और चटनी खाते थे। तो थोड़ा बहुत उसमें फर्क तो पड़ा है। अभी लोचा खाते हैं, स्टीम किया हुआ, तला हुआ नहीं खाते हैं। सो एनीवेज,
थोड़ा सा फर्क पड़ा है, बट ऑफ कोर्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स बेटरमेंट. फर्क लग रहा है मुझे. Somewhere I feel that today's young generation, they have become very much diet conscious, and this is actually very good sign of, you know, their better health in future. What do you say about it? Yeah. नहीं, दिस इज समथिंग गुड, एज आई सेड इन माय लास्ट आंसर आल्सो, कि अच्छी से हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ी है, और जो कि बहुत जरूरी है. इवन माय 9 year old नीस जो है बोलती है, नहीं नहीं मुझे पैनकेक्स अच्छे लगते हैं, बट एक से ज्यादा नहीं खाऊंगी वरना मेरे दांत भी खराब हो जाएंगे और मैं मोटी हो जाऊंगी. सो दे नो इट दैट इट इज नॉट राइट. इनफैक्ट इसमें स्कूल्स का भी बहुत बड़ा पार्ट है. द वे यू हैड इनवाइटेड मी for the awareness of diet in your school, children and your parents, इस तरह और स्कूल्स भी बहुत ज्यादा से कॉन्शियस है, जहाँ पे बच्चों को पहले से सिखाया जा रहा है कि बेटा ये चीजें गलत है, ये मत खाओ. मुझे नहीं याद है कि हम लोग जब स्कूल में थे फूड पे इतना ज्यादा कोई अवेयरनेस का कोई सेशन हुआ हो, ना आपको याद होगा, राइट. तो अभी ये अवेयरनेस स्कूल के लेवल से ही बढ़ रही है. इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. मोदी जी इसका इनिशिएटिव लेके स्वस्थ भारत पे बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत आगे जाके बहुत अच्छा रूप धारण करेगी, डेफिनेटली. So here, when you talked about my school, I just want to inform you with a good news that after your session, I have actually designed a special menu for every day uh, for my students, and it has been given to each and every students, their parents, in their diary, and one copy given to parents, especially mothers, to stick it in their kitchens. And suppose it's a Monday, so they have what things they can eat on Monday. So Monday is a sprouts day, Tuesday is a salad day, Wednesday is a rice and dal day or a rice day. Then one day is for fruits, one day is for like this what we say khameer yeast day, where when we eat this dokla, idli, dosa, and all kind of things. So whole menu is decided, and we strictly don't allow any kind of this namkeen and fried things in our school. So That's parents are amazing. very happy with this. That's amazing. बहुत अच्छा है. एक तो हेल्थ जा रही है, बच्चों को हेल्दी फूड जा रहा है, एंड एट द सेम टाइम उनको ये पता चल रहा है कि ये गलत है. तो ये बहुत अच्छी बात है. दिस इज समथिंग वेरी गुड. Congratulations to you and your टीचर्स हु आर वर्किंग ऑन इट, एंड पेरेंट्स के लिए भी एक इजी भी चीज हो जाती है मदर्स के लिए कि रोज रोज क्या दे बच्चे को. तो ये अच्छा है कि पहले से ही उनको वेल डिफाइंड एक स्केड्यूल मिल जाता है, तो उनको पता है कि आज यही देना है, तो उनकी भी मेहनत कम हो जाती है. सो हेड्स ऑफ टू यू एंड योर स्कूल. Thank you, ma'am. And let me tell you that Neerja ma'am is a good singer also. Good is very less word. In fact, she is an awesome singer. I've heard her singing when I was in GD Goyanga. So how can we leave her without listening to her beautiful voice? And one amazing thing which I want to tell about her is her Nana ji. He was a great singer, Mr. Kantilal Diwan. So she has beautiful singing in her genes. So Nirja ma'am, please one song. Okay. अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान. अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान. This is related to this lockdown period. कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान, कैसे ना मिलेगी दिल प्यार की, है मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार, हम सदाएं
Thank you so much, ma'am. Thank you. It Thank was you. really beautiful and mesmerizing as always. I really miss your beautiful voice. Some Thank you. songs, whenever they are coming on radio, I actually forget the original singers, and your face comes in front of me as if you are singing in front of us. So So, sweet. Nirja So ma'am, sweet of you. Nirja ma'am, in the end of the program, I just want you to give one message to my viewers about healthy diet they should maintain during this period. Well, to all the viewers, I would like to say, stay safe, stay healthy, but eat healthy. Stay at home, but just make healthy food. Don't make such high calorie food. Don't become obese. Be conscious of your own self. That's it. Thank you so much. Uh, Before we end our program, we wind up our program. I just want to inform my viewers that this program, this episode, they are going to watch on my YouTube channel, Abha Jadhav, which will be available soon on my YouTube channel. You can also listen to this episode of Spotlight with Abha on Radio Brainrine, for which you have to download Brainrine radio application from Google Play Store, and you will also be amazed to know that our episodes are loved by you all people, for which I am very much thankful. And Nirja ma'am, I request you also to visit my channel and listen to all the other episodes of Spotlight with Abha. Sure. And I thank already you. visited. I already visited to a few of the episodes since yesterday, and they're amazing. They're very informative, actually. Thank you so much for such a beautiful effort in this direction, ma'am. Thank you, ma'am, and thank you for being here on my show. And My once pleasure. again, I just wish each and everyone to maintain a healthy diet, a balanced diet, look after the diet of their children, and create a happy and healthy, along with fitness, a great family. So, with that, we come to the end of the program. We will meet in the next episode of Spotlight with Abba with yet another astounding personality. Till then, take care of yourself. Have a good time. Namaskar. Thank you. Thank you. Namaskar. मोहब्बत जो करते हैं वो मोहब्बत जताते नहीं, धड़कने अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं, किसी को सुनाते नहीं। मजा क्या रहा जब के खुद कर लिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से, इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में जा